Now, bioavailability. What do you mean by bioavailability? So that is nothing but the fraction of drug that reaches to a systemic circulation. That is nothing but the bioavailability, and it is 100% when drug is given by intravenous route. Remember. Now, what is the formula for this calculation of bioavailability? So that is nothing but the that is done bioavailability is denoted by capital F. जो एफ लेटर होता है वो डिनोट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी. सो बायो अवेलेबिलिटी इज नथिंग बट द एरिया अंडर कर्व आफ्टर पर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व बाय आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 100. सपोज दैट ये आपका जीआईटी का वाल है, इंटेस्टाइन का वाल है, जीआईटी lumen. So whatever absorption is there from GIT lumen, most of the blood is carried to liver फ्रॉम द जीआईटी एरिया. जो भी आपका स्टमक का एरिया है, जो भी आपका किचन एरिया है, वहां से जो भी एब्सॉर्प्शन होगा, जैसे न्यूट्रिशन होता है, शुगर्स, सभी विटामिन वगैरह, प्रोटीन्स, सो दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्टली कैरिड टू लिवर. सो वट एवर ब्लड इज देयर सराउंडिंग फ्रॉम यूर जीआईटी स्टमक के सराउंडिंग में का ब्लड, इंटेस्टाइन में के सराउंडिंग का ब्लड. सो वट एवर ब्लड इज whatever drug is or drug or whatever nutritions and all the kind of vitamins, nutrition, proteins, lipids, whatever they are absorbed from this GIT, they are carried to a liver. Liver is a metabolic factory of your body. ठीक है, that's why. So by a vein known as a portal vein, जो भी जीआईटी का एब्सॉर्प्शन होगा, जीआईटी में से ड्रग का, जिसमें ड्रग भी हो सकते हैं आपका, इसमें आपके विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स सब हो सकते हैं. सो वट एवर एब्सॉर्ब इज कैरी आउट टू ए लिवर बाय वेन नोन एज अ पोर्टल वेन. जहाँ पे भी जो जीआईटी का वॉल जो है, मोस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाइड टू जीआईटी इज कैरिड टू ए लिवर बाय पोर्टल वेन. कुछ क्या होता है कि वट एवर unabsorbed portion of material is there, that will be carried to exit, and some part of drugs or drugs will be metabolized in the GIT lumen. जो GIT का wall होता है इंटेस्टाइन का, वहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल CYP3A4, दिस इज एंजाइम, सो इट विल मेटाबोलाइज द ड्रग. उसमें GIT के wall में भी कुछ मेटाबॉलिज्म होता है, बट दैट इज negligible. Okay, you can neglect that. So most of the blood is carried to a liver, and liver में जो मेटाबॉलिज्म होता है, first pass metabolism, so that is known as a first pass metabolism. So whatever metabolism of drug takes place in the liver before drug reaches to a systemic circulation, that is known as a first pass metabolism or first pass. And those drugs which are very lipid soluble, which are easily मतलब जिनका solubility plus permeability बहुत ज्यादा है, जैसे for example propranolol, that is a drug having highest solubility and highest permeability, so it will go extensively on the fast pass metabolism. So I will explain this later again. So that is known as a, we'll see now kinetics. So suppose that आपने ड्रग दिया है, और ड्रग देने के बाद इंजेक्शन दिया है या फिर टैबलेट दिया है, जो भी, इफ यू सपोज दैट यू गिवन अ टैबलेट टू ए पेशेंट, एंड आफ्टर टाइम इंटरवल, कुछ टाइम के बाद में आपने उसका ब्लड का सैंपल ले लिया और उसने चेक किया कि इतना ड्रग आया ब्लड में. सो यू विल गेट अ टिपिकल कर्व, दैट इज नोन एज अ टिपिकल प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व. इट विल शो काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ ड्रग. सो आपने टैबलेट दिया पेशेंट को, उसके बाद में एक पर्टिकुलर इंटरवल में आपका उसका ब्लड लेवल चेक किया कि ब्लड में ड्रग है या नहीं. सो suppose initially there will be a absorption phase, so absorption of drug will be like look like this. Initially it will slowly, then it will reach to a up to a particular level known as a plasma peak level or Cmax, and then it will decline, and that is elimination. So this is just a typical plasma uh, typical drug concentration versus time curve. इसके बारे में ये जो टर्म्स है बाद में बोल दूंगा मैं आपको, because these terms are very important. So initially after absorption, the concentration of time from which drug is started absorbing and the time at which drug appears in the blood, that is known as a onset time. This phase is known as left hand side पे जो phase है, that is known as the absorption phase. Right hand पे जो phase है, that is known as a elimination phase. इनिशियली ड्रग एब्सॉर्ब होगा, और एब्सॉर्ब होके वो पीक प्लाज्मा लेवल पे जाएगा, मतलब देयर विल बी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड, एंड दैट हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड इज नोन एज सी मैक्स. Okay, C max, that is nothing but the maximum concentration of drug in the blood, C max. Okay, at the C max, remember, at the C max, rate of absorption is equal to rate of elimination. यहाँ पे absorption rate elimination rate equal होगा.
एट द सी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। जैसे एब्सॉर्प्शन होके यहाँ पे पीक लेवल आएगा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया एब्सॉर्प्शन फेज आपका। नाउ ये हो गया आपका इलिमिनेशन फेज, यहाँ पे ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ इसमें बहुत सारे टर्म्स है, आई विल एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट में onset of drug action, onset of drug action, the time required to start any pharmacological response after giving a drug by oral route। जैसे मान लीजिए आपने टैबलेट खाया और टैबलेट खाने के बाद एक टाइम लगता है कि उस टाइम पे ही एक्शन शुरू होगा, मतलब एब्सॉर्प्शन पीक लेवल आ जाएगा उसमें। सो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए फार्माकोलॉजिकल एक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म, दैट इज नोन एज अ onset of drug action। फॉर एग्जाम्पल अगर सब्लिमिनल टैबलेट लिया आपने तो उसमें दो मिनट का है, अगर आपने ओरल टैबलेट लिया तो उसमें 25 मिनट्स का है। सो 25 मिनट्स विल बी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू गेट अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन फ्रॉम ओरल टैबलेट। सो दैट इज नोन एज द onset of drug action। द टाइम known as the onset time, the time required to get a pharmacological action is the onset time, and the concentration to reach a concentration required minimum effective concentration जिसको बोलते हैं, that is the onset of drug action। now इसमें दो टर्म्स है, minimum effective concentration, maximum safe concentration, MEC और MSC। the concentration of drug in the blood, the minimum concentration of drug in the blood that is required to produce a pharmacological effect, minimum concentration of drug in the blood or plasma that is required to produce a pharmacological effect, that is known as a minimum effective concentration, MEC। okay, so minimum concentration of drug in the blood that is required to produce a pharmacological action। इसके नीचे कोई एक्शन नहीं होगा, इसके नीचे अगर कॉन्सेंट्रेशन आएगा तो देयर विल बी नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंड दैट इज नोन एज अ सब थेरेपेटिक लेवल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग बिलो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज अ सब थेरेपेटिक लेवल। okay, concentration above the minimum effective concentration, that is known as effective or therapeutic level, this is the minimum effective concentration। are you getting or not? समझ में आया मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। नाउ मैक्सिमम सेफ डोज। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन योर प्लाज्मा और ब्लड above which there is a appearance of toxic effect। the concentration of drug in the blood above which there is a toxic effect, इसके ऊपर मैक्सिमम सेफ डोज, मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, इसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेशन चला गया ड्रग का बॉडी में तो क्या होगा, टॉक्सिक एडवर्सिबिलिटी या फिर टॉक्सिक लेवल हो जाएगा, वो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन के नीचे ही आना चाहिए और मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आना चाहिए। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग शुड बी इन द रेंज ऑफ मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन टू maximum safe concentration, and the concentration range between minimum effective concentration and maximum safe dose, okay, that is a concentration range of drug। और ये this concentration range of minimum effective concentration and maximum safe concentration is known as a therapeutic window, is known। so concentration range between minimum effective concentration and maximum safe dose, रिमेंबर ये मैं यहाँ पे दो तीन बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। सो कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज थेरेपेटिक विंडो और थेरेपेटिक रेंज। द कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन MEC एंड MSC, इसके बीच में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन आएगा आपको उसको बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो और थेरेपेटिक रेंज। एंड दिस वाज क्वेश्चन इन GPAT 21, लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया था, थेरेपेटिक विंडो ऐसा ही क्वेश्चन था। द कॉन्सेंट्रेशन रेंज, that is the concentration, minimum effective concentration and maximum safe concentration, the concentration range between minimum effective concentration and maximum safe concentration in the typical plasma drug concentration time curve is known as, ऐसा था क्वेश्चन और उसका आंसर था therapeutic window or therapeutic range। and most of the students they used to skip this question because they don't know what is the proper answer, they used to get confusion between therapeutic window, therapeutic range and therapeutic index। यहाँ पे अनदर टर्म होता है थेरेपेटिक इंडेक्स। तो थेरेपेटिक इंडेक्स उसको बोलते हैं LD50 डिवाइड बाय ED50। तो थेरेपेटिक इंडेक्स इज अ डिफरेंट टर्म, थेरेपेटिक विंडो इज अ डिफरेंट टर्म और थेरेपेटिक विंडो इज अ डिफरेंट टर्म, थेरेपेटिक रेंज इज अ डिफरेंट टर्म। ठीक है, याद रखो थेरेपेटिक रेंज किसको बोलेंगे, सो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों के बीच का जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का ब्लड में उसको बोलेंगे थेरेपेटिक रेंज, दैट इज नोन एज अ थेरेपेटिक रेंज। इसमें देखो अभी ये सेफ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा। सो यू विल गेट ओनली थेरेपेटिक इफेक्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन MEC एंड MSC।
इसके बीच में सिर्फ थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा, जो भी डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है आपका, तो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यू आर रेटिंग इन बिटवीन दिस कॉन्सेंट्रेशन। बिलो दिस मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सब थेरेपेटिक लेवल, बिलो दिस मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सब थेरेपेटिक। इसके नीचे अगर ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन होगा ड्रग का तो उसमें कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, दैट इज नोन एज सब थेरेपेटिक लेवल। इसके बीच में, दोनों के बीच में होगा तो थेरेपेटिक विंडो और थेरेपेटिक रेंज। इसके ऊपर जाएगा तो टॉक्सिक लेवल होगा, इसके ऊपर जाएगा। सो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन अबव मैक्सिमम से कॉन्सेंट्रेशन नोन एज अ टॉक्सिक लेवल, and at the Cmax maximum concentration of drug in the blood, at the Cmax that is maximum concentration of drug in the blood, so at the Cmax rate of absorption is equal to rate of elimination। याद रखो, this one is known as absorption base, this one is known as elimination base। ओके, जैसे आपका एब्सॉर्प्शन होगा, एक प्लाज्मा लेवल आएगा आपको, पीक प्लाज्मा लेवल, उसके बाद में कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये दैट इज नथिंग बट टिपिकल प्लाज्मा drug concentration versus time curve showing the kinetics and dynamics after single oral dose administration। ठीक है, तो ये याद रखो कि the concentration range between MEC and MSC is known as therapeutic range or therapeutic window, below the MEC subtherapeutic level, above the MSC toxic level। okay, you should not get confused between therapeutic window and therapeutic index। therapeutic index is different term, I will explain it, याद रखो। and the time required to get a maximum concentration in the blood is known as a Tmax। Tmax किसको बोलेंगे? The time at which there is a maximum concentration of drug in the blood। Time required to get a Cmax, time required to get a Cmax is a Tmax। Tmax maximum time के किसको बोलेंगे? The time required to get a maximum concentration of drug in the blood is a Tmax। and ये आपको क्या दिखाएगा? So it will show you the intensity of action। The vertical line जो ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे, जो वर्टिकल लाइन, सो इट विल शो यू इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, कितना इंटेंस एक्शन है। एंड द हॉरिजॉन्टल, इफ यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन दिस कर्व, सो दैट विल शो यू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लाइन ड्रॉ करेंगे आप इसके बीच में, दैट विल शो यू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। द वर्टिकल लाइन विल शो यू इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन विल शो यू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बट हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे? नीचे नहीं या फिर ऊपर भी नहीं, इसके बीच में एमएससी और एमईसी के बीच में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, दैट विल शो यू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। थेरेपेटिक विंडो और थेरेपेटिक रेंज क्या होता है, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन रेंज, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। The concentration range between minimum effective concentration and maximum safe concentration is known as therapeutic window और therapeutic range। ये 4 बार मैंने बोला है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, above the MSC there will be toxic level, below the MEC there will be sub therapeutic level। typical plasma drug concentration versus time curve। now we'll see the next point, we'll see the kinetics, particularly absorption, distribution, metabolism and elimination। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? So kinetics means movement of drug in the body, how drug is absorbed, how drug is distributed in the various compartment of body, how drug is metabolized, and how drug is eliminated or excreted। So the flow of drug right from absorption to the elimination, that is nothing but the kinetics। Okay, so the pharmacokinetics comes, that is nothing but the absorption, distribution, metabolism and elimination। kinetics में आपका ये सब आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका आपने टैबलेट लिया है, टैबलेट ड्रग इन डोसेज फॉर्म, टैबलेट क्या है? डोसेज फॉर्म। तो वो वहां से रिलीज होगा आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ड्रग इन अ सॉल्यूशन, देयर इज एब्सॉर्प्शन फेज। सो आफ्टर दैट ड्रग विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, दैट इज नोन एज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये आपका ब्लड हो गया। ठीक है, अभी जब ब्लड में ड्रग जाएगा, नाउ ड्रग इज इन अ फ्री फॉर्म, फ्री बाउंड नहीं हुआ किसी को, फ्री ड्रग का मॉलिक्यूल है ब्लड में। ओके, नाउ इट हैज अ डिफरेंट चांसेस। Now it may bound to plasma protein। प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं आपका, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, जो हमने देखा है ब्लड में, सो उसको बाउंड करेंगे। ओके, आइदर योर ड्रग इन ब्लड विल बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन और ड्रग में बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ साइट ऑफ एक्शन। ये साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा और साइट ऑफ एक्शन पे भी वो फ्री रह सकता है या फिर बाउंड फॉर्म में रह सकता है। ड्रग इन द ब्लड may either bind to plasma protein or it may be distributed to site of action or it may be distributed to different tissues, it may bound to different tissues। जैसे होता है ना, बोन्स को अगर फ्लोराइड आयन से
सो फ्लोराइड आयंस विल बाउंड टू टीथ एंड बोन्स. टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन अगर दिया है तो दैट विल आल्सो बाइंड टू बोन्स एंड टिश्यू, बोन टिश्यू एंड टीथ. क्लोरोक्विन का अगर क्लोरोक्विन अगर है तो क्लोरोक्विन विल बाइंड टू पर्टिकुलर टिश्यू नोन एज अ रेटिना. ठीक है, ये अपन बाद में भी देख लेंगे फिर से कौन सा ड्रग किसको बाइंड करता है वो बात. सो ब्लड इन द ड्रग इन द ब्लड आफ्टर सिस्टमिक absorption in the blood. If drug is in a systemic circulation, it may be either bound to plasma protein, it may be distributed to site of action, it may be bound to different tissue, or some part of drug may be metabolized, okay, after biotransformation, and after that there will be excretion of drugs and metabolite. Drug may be excreted either in a unchanged form or in a और इट्स मेटाबोलाइट. ड्रग का मेटाबॉलिज्म होके मेटाबोलाइट जो है वो एक्सक्रीट होंगे या फिर अनचेंज ड्रग भी एक्सक्रीट होता है. सो इन द यूरिन, बाइल, फीसेस, सलाइवा, स्वेट कि दीज आर द एलिमिनेशन रूट. ड्रग्स कैन बी एलिमिनेटेड वाया यूरिन. यूरिन से मोस्टली ड्रग एलिमिनेट होता है. सो 90% ऑफ ड्रग विल बी 80% ऑफ ड्रग विल बी एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन. देन बाइल में भी ड्रग का एलिमिनेशन होता है. फीसेस से भी होता है आपका जो लैट्रिन होता है उसमें से. और स्वेट जो स्वेटिंग होता है उसमें से भी ड्रग एलिमेंट हो सकता है. सलाइवा से भी ड्रग एलिमेंट हो सकता है. अभी अगर सलाइवा से ड्रग एलिमेंट हो गया, अब देखो अगर आपने मेट्रोनिडाजोल का एक टैबलेट आता है मेट्रोनिडाजोल, सो इट इज अ एंटी पैरासाइटिक ड्रग. तो मेट्रोनिडाजोल का अगर टैबलेट लिया आपने तो आपका जो मुंह है पूरा कड़वा बन जाता है. सो यू विल गेट अ इंटेंस बिटर माउथ, इंटेंस बिटर टेस्ट इन द माउथ after taking a metronidazole tablet. Why? Because this metronidazole is excreted in the saliva. सलाइवा में उसका एक्सक्रीशन होता है और दिस मेट्रोनिडाजोल इज इंटेंस बिटर टेस्ट. ठीक है, जब आप टैबलेट लेंगे तब बेटर नहीं लगेगा आपको. टैबलेट लेंगे आप निकल जाओगे, पेट में जाएगा, उसके बाद 2 या 3 आवर्स के बाद आपको एक बिटर इंटेंस बिटर आपका मुंह में पूरा कड़वाहट आ जाएगी, कड़वा पड़ेगा आपको, तोंड आपलं सगळं कडू पडेल का, बिकॉज दैट मेट्रोनिडाजोल इज एक्सक्रीटेड इन द सलाइवा and it has a very bitter taste. The movement of drug in the body, right from absorption, distribution, metabolism and elimination, that is a kinetics, that is known as a pharmacokinetics. Now we'll see the absorption process. Absorption of drug, different process of absorption. First will be absorption, then we'll see distribution, then we'll see metabolism, then we'll see excretion. So out of that, first one is the absorption. Okay, absorption कैसे होगा ड्रग का, ठीक है. So first one is absorption. So there are different processes for absorption. So passive diffusion is there, facilitated diffusion is there, then active transport is there, then pinocytosis, okay, then phagocytosis is there likewise. So passive diffusion क्या होगा, absorption मतलब what is meant by absorption of drug, or it is also known as a permeation. So movement of drug from GIT wall, movement of drug from GIT wall after dissolution, it has to cross a membrane of your GIT to reach into the systemic circulation. So that is nothing but the crossing of your membrane. आपके इंटेस्टाइन में से ब्लड ड्रग जो है आपका ब्लड में जाएगा. So it has to cross the intestinal wall. To cross the intestinal wall, there are different factors that depends on the physicochemical properties of drug. Then वो सब है. So there are different process of drug absorption. First one is the passive diffusion. First one is the passive diffusion. So क्या होता है इसमें? So also it is also known as non-ionic diffusion. Okay, it is also known as non-ionic diffusion. Movement of drug along with the concentration gradient or electrochemical gradient from high to low. Okay, and this concentration gradient is also a driving force for movement. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. See this diagram. Okay, so suppose that this is your semi permeable membrane. आपका जो GIT का membrane है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. जैसे आपका ऐसे होता है जो लेयर होता है आपके मेम्ब्रेन जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं अपन. तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विल लुक लाइक दिस. सो इट विल हैव अ is now also known as a phospholipid bilayer. Biological membrane is nothing but the phospholipid bilayer. So it will have hydrophobic heads projecting outside and hydrophilic heads projecting outside and hydrophobic tails projecting inside. ये tails होंगे hydrophobic, ये लिपिडल इन नेचर होता है, और ये जो हेड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक मतलब का वाटर सोल्युबिलिटी होता है. सो दिस इज योर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ सपोज दैट आपका जीआईटी का मेम्ब्रेन है, ये डार्क लाइन, ये जो लाइन है लंबा, ये जीआईटी का मेम्ब्रेन है, और आपका ये जीआईटी का ल्यूमिन है। ठीक है, यहाँ पे आपका टैबलेट डिसइंटीग्रेट होके डिसोल्यूशन होके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ड्रग का मॉलिक्यूल है, ये बीच में का मेम्ब्रेन है यार, यहाँ पे ये ब्लड है, इधर इधर क्या है, ब्लड है। ये जो लो कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि ब्लड है। ठीक है, ब्लड मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आपके ड्रग का। ठीक है, यहाँ पे यू हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, यहाँ पे here you have low concentration of drug. So obviously drug molecule will move from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. So that is known as a concentration gradient. यहाँ पे ज्यादा concentration है, यहाँ पे कम है, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा ड्रग का मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नोन एज अ diffusion. That is known as a diffusion. So okay, so movement of drug from higher concentration to lower concentration, or movement of drug from higher electrochemical gradient to the lower electrochemical gradient, that is known as a diffusion. And in this diffusion there is no any kind of energy involved, so it is a passive, not an active process. So passive diffusion. Are you getting passive diffusion? Hello, are you getting it or not? So movement of drug particle from higher concentration to lower concentration, or movement of drug particle from higher electrochemical gradient to lower electrochemical gradient. So electrochemical gradient कैसे होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू इक्विलिब्रियम, क्योंकि बीच में जो मेम्ब्रेन है दैट इज अ सेमी परमेएबल। ठीक है, so that is a driving force. So electrochemical gradient or concentration gradient, that is a driving force for movement of drug across the biological membrane, and that is known as a passive diffusion. Okay, and 90% of drugs they are absorbed by passive diffusion. Okay, 90% of drug they are absorbed by passive diffusion. याद रखो, जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है, 90% drug are absorbed by one of the following process of absorption. So that is a passive diffusion. 90% of drug are absorbed by passive diffusion. Okay, now passive diffusion is expressed by Fick's law. एक फिक्स लॉ है, फिक्स का एक इक्वेशन है, दैट इज फॉर डिफ्यूजन, सो दैट इज गवर्न बाय फिक्स लॉ। ये भी क्वेश्चन जीपैट 2018 में आया था। ओके, सो डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, द लॉ बिहाइंड पैसिव डिफ्यूजन इज अ फिक्स लॉ, फिक्स एक्सप्रेशन और फिक्स लॉ। नाउ प्रोसेस इज एनर्जी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, so that's why you have a concentration gradient or electrochemical gradient over here. So that's why there is no requirement of any kind of energy for the transport of this drug molecule from higher concentration to lower concentration. So process of passive diffusion is a energy independent, मतलब यहाँ पे एनर्जी नहीं लगने वाला है कुछ। इट इज अ नॉन सैचुरेबल एंड molecular weight in a range of 100 to 400 daltons, they are absorbed passively. So drug molecules or any kind of molecule, those which will have molecular weight between 100 to 400 dalton, they can be absorbed passively or they are diffused passively. इसमें क्या होता है कि ये आपका concentration of drug in the GIT lumen, यहाँ पे ये concentration कहाँ पे है, GIT के वॉल में है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके बाद में आपका क्या है, ब्लड है। So concentration of GIT is always maintained higher side than a concentration of drug in the blood. Concentration of drug in the GIT is always maintained higher than concentration of drug in the blood because of rapid distribution of drug in the blood. Blood कितना है, 6 लीटर है आपके पास, तो rapid distribution होता है drug का in the blood. So the concentration of blood is always maintained low than concentration of drug in the GIT, and this is known as a सिंक कंडीशन। दिस इज नोन एज अ सिंक कंडीशन, ये याद रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो concentration of GIT, concentration of drug in the GIT lumen is always higher than concentration of drug in the blood, and this is the driving force, and this condition is always maintained most of the time because of effective distribution, and that is known as a सिंक कंडीशन। ये सिंक कंडीशन किसको बोलते हैं, ये क्या रखो, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और ट्रांसपोर्ट, सो जो लो मोलिकुलर वेट होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, वो दैट आर एब्सॉर्ब बाय पोर ट्रांसपोर्ट। सो इट इज आल्सो नोन एज कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन।
This mechanism is responsible for the transport of molecules into the cell via protein channel present in the cell membrane. जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच बीच में प्रोटीन चैनल्स भी होंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए. सो इन केस ऑफ पोर ट्रांसपोर्ट इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट और bulk flow or filtration, and this mechanism is responsible for the transport of molecules inside the cell through protein channels. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द ड्राइविंग फोर्स. तो मान लीजिए कि एक साइड पे ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, एक साइड पे कम होगा, तो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स टू ट्रांसपोर्ट द ड्रग्स बाय पोर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू difference in the concentration across the membrane. Molecular weight less than 100 dalton. Molecular weight less than 100 dalton, they are transported by this pore transport mechanism. For example, यूरिया, वाटर, शुगर. ठीक है, वह यूरिया, वाटर, शुगर जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय पोर ट्रांसपोर्ट. जो शुगर आप कितना भी खाओ, जितना शुगर खाओगे उतना शुगर एब्सॉर्ब होगा. ठीक है, आप जितना पानी पियोगे उतना पानी एब्सॉर्ब होगा आपके ब्लड में. ठीक है, बाद में, ठीक है, बाद में वो उसका जितना पानी पियोगे उतना यूरिन भी होगा आपको. मतलब जितना पानी ज्यादा पियोगे आप उतना पानी एब्सॉर्ब होता ही रहता है. ठीक है, बिकॉज देर इज अनदर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, शुगर, यूरिया फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड, कि वहाँ पे सैचुरेबल नहीं है, सैचुरेशन नहीं होगा. मतलब ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम होगा कि आपके ब्लड में भी पानी ज्यादा उतना अमाउंट में आपके जीआईटी में उतना है तो एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है. जितना भी पानी आपके जीआईटी में रहेगा उतना भी एब्सॉर्ब हो जाएगा पूरा. जितना भी यूरिया आपके जीआईटी में होगा उतना एब्सॉर्ब होगा. जितना भी शुगर आप खाओगे उतना सब एब्सॉर्ब होगा आपके ब्लड में, बढ़ेगा. बाद में अगर ज्यादा है तो बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. बॉडी में जितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए वाटर का उतना ही रखेगा, बाद में बाकी फिल्टर कर देगा किडनी में से, तो यूरिन हो जाएगा उसका. सो water, urea and sugar, these three chemicals, they are absorbed by pore transport, remember. Okay, and linear molecule, remember, molecular weight less than 100 Dalton, they are absorbed by pore transport. And again linear molecule up to 400 daltons, ठीक है, वो भी एब्सॉर्ब करते हैं बाय फिल्ट्रेशन, बट मॉलिक्यूल शुड बी लीनियर, ये ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए उसका. ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल अप टू 400 डेल्टॉन, they can be absorbed by filtration. Okay, size of aqueous filled pore is around 4 to 10 angstrom unit. This was question in GPAT 21. आप पेपर उठा के देख लो, पोर ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT 21. तो इसका जो पोर्स होता है, जो पोर है, जैसे प्रोटीन चैनल जो होता है, प्रोटीन चैनल मतलब पोर के टाइप पोर ही होता है वो. सो प्रोटीन चैनल का या फिर जो पोर है उसका साइज कितना है, ये क्वेश्चन GPAT 21 में पूछा था. तो साइज ऑफ एक्वियस फिल्ड पोर इज नथिंग बट 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट. इसके ऊपर GPAT 21 में क्वेश्चन आ चुका है. So what is size of aqueous filled pores? It question was like that. What is the size of aqueous filled pores? And उसके नीचे ऑप्शन बहुत सारे थे, 3 to 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट, then 4 to 10 angstrom unit, 15 to 20 angstrom unit, ऐसा. So answer was a 10 to answer was a 4 to 10 angstrom unit. So you can check in the next mechanism of absorption or process of absorption is a ion pair transport. Ion pair transport. So drugs and chemicals like quaternary ammonium sulfonic acid, despite of their low partition coefficient values, such drug penetrate the membrane by forming a reversible natural complex with indigenous ion of GIT like mucin. The phenomenon is known as a ion pore transport और आयन पेयर ट्रांसपोर्ट. आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है कि जो जो ड्रग मॉलिक्यूल है जो क्वाटरनरी अमोनियम है या फिर जो जिनके ऊपर चार्ज है, ठीक है, जो माइनस चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा, ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो those kind of drug will be transported across the biological membrane by the process of ion pair transport. आपका जो GIT का लुमेन है वहाँ पे भी कुछ आयंस होते हैं लाइक म्यूसिन. ओके, म्यूसिन होता है आपके जीआईटी में. तो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपका जो जीआईटी का आयन है वो पेयर करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जीआईटी में आपका माइनस चार्ज है तो वो पेयर करेगा आपके पॉजिटिव चार्ज जो ड्रग है उसके ऊपर और वो बाद में ट्रांसफर करेंगे. सो लाइक दैट इज दैट. सो आयन पेयर ट्रांसफर. एंड रिमेंबर वन थिंग फॉर जनरल एब्सॉर्प्शन,
जनरली लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होते हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग, अनआयोनाइज्ड लिपिड सोल्यूबल ड्रग, दे आर एब्सॉर्ब रैपिडली फ्रॉम द जीआईटी। मतलब जीआईटी हो या कौन सा भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो, सो टू क्रॉस ए ड्रग, टू क्रॉस ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉर a drug should be a lipid soluble and unionized. Okay, it should remain in an unionized form and lipid soluble, so that it can cross biological membrane rapidly. Now let's come to the ion pair transport. मैंने बोला है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर आपका चार्ज होगा, चार्ज्ड मॉलिक्यूल लाइक क्वाटरनरी अमोनियम सल्फोनिक एसिड, ठीक है, इसके ऊपर लो पार्टीशन कोएफिशिएंट अगर इनका होगा, फिर भी लो पार्टीशन कोएफिशिएंट मींस लो लिपिड solubility, though they have low lipid solubility, but because of their charge they get paired with the molecule of GIT like mucin, and they are transported. They are known as a ion pair, ion pair transport. For example, propranolol, a basic drug that forms ion pair with the oleic acid and it is absorbed by this mechanism. एग्जाम्पल क्या है उसका, प्रोप्रानोलोल, ये बीटा ब्लॉकर ड्रग होता है, ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है. It will form a complex with the oleic acid of the GIT and then it will be transported. Okay, that is ion pair transport. Next one is a facilitated diffusion. अभी आपने जो डिफ्यूजन देखा है that is a passive diffusion. Passive diffusion में ही तीन प्रोसेस है आपका, passive diffusion है, आपका ion pair transport है, आपका पोर ट्रांसपोर्ट है. सो एवरी, ठीक है, जो भी आपने देखा है, पैसिव डिफ्यूजन देखा, बाद पोर ट्रांसपोर्ट देखा, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आयन पेयर, ये तीनों तीनों प्रोसेस जो है, ऑल दीज थ्री मैकेनिज्म्स ऑफ एब्सॉर्प्शन विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रहा है. नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेट करना है आपको यहाँ पे. A carrier mediated system operate with the downhill transport. Downhill the concentration gradient. Driving force is the concentration gradient again here. So that is known as facilitated diffusion. इसमें क्या होता है कि इसमें कैरियर प्रोटीन रहता है, जो आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कैरियर प्रोटीन रहेगा. प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द मॉलिक्यूल फ्रॉम one side to another side of the membrane. Okay, and again here concentration gradient is there. Okay, so that's why again here energy is not required. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ एनर्जी लगता है आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. सो हियर ए कैरियर प्रोटीन विल टेक द ड्रग across the membrane. Okay, for example, glucose, entry of glucose into RBC, glucose transporters are there to transport glucose into RBC, glucose transporters, or entry of glucose in from intestine to the blood, again glucose transporters are there. Vitamin B12 is absorbed by this mechanism. इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है आपके स्टमक में, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन होता है आपके स्टमक में, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. इसके बारे में क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है. ओके, फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड व्हिच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर व्हिच इज प्रेजेंट इन योर मेम्ब्रेन. जो भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आपका जीआईटी का, उसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंड if there is absence of this glycoprotein, vitamin B12 will not be absorbed from the stomach or intestine. So for the absorption of vitamin B12 intrinsic factor is required. ठीक है, तो ये जो glycoprotein intrinsic factor, so that will take vitamin B12 molecule, that will take vitamin B12 molecule from GIT lumen to the systemic circulation. This was again question in GPAT 21. This was again a question in GPAT 21. So absorption of vitamin B12 required a one इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर. ये क्वेश्चन था. क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज, ओके, और ऑप्शन में एक ऑप्शन था जीपी ग्लाइकोप्रोटीन. जीपी ग्लाइकोप्रोटीन इज द नेचर ऑफ दैट इंट्रिंसिक फैक्टर. यू कैन सी सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है. सिंपल डिफ्यूजन में देखो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे आपके ड्रग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, ड्रग का यहाँ पे नहीं है, तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो ड्रग विल बी डिफ्यूज्ड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. और भाई इनसाइड द सेल, आप बोलेंगे इनसाइड द सेल पे भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गए तो फिर ये सैचुरेट हो जाएगा. वैसा नहीं होता, क्योंकि इनसाइड द सेल मतलब ये यहाँ पे ब्लड होगा तो ब्लड में रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, तो यहाँ से फटक से निकल जाएंगे मॉलिक्यूल ब्लड में ऑल ओवर द बॉडी.
So because of rapid distribution, here always concentration is maintained low, and that is known as a sink condition. ये भी देखा है. Now this is a simple division. Division without helper protein. यहाँ पे भी एनर्जी नहीं लग रहा है आपको. Now diffusion known as a facilitated diffusion. Diffusion using a helper protein. कि यहाँ पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का चैनल रहेगा, प्रोटीन चैनल. जैसे कि मान लीजिए कि ये विटामिन B12 के मॉलिक्यूल्स है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर है. सो इंट्रिंसिक फैक्टर विल टेक विटामिन B12 molecule and it will transport across the cell membrane again through the concentration gradient. That is known as a facilitated diffusion. Are you getting or not? Next one is a carrier mediated transport. Carrier mediated transport जैसे facilitated diffusion में था ग्लाइकोप्रोटीन, उस टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन रहेंगे इसमें, उस टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन रहेंगे उसमें, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करेंगे. मतलब जहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है फिर भी वहां पे ट्रांसफर करेंगे. ठीक है. स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन, monosaccharides, amino acids. A membrane bound protein known as a carrier binds reversibly with the molecule or non-covalently with the molecule. A complex is transported across the membrane and then dissociated, releasing the molecule of interest. The carrier will be back again. Carrier has a always non-polar outer surface. यहाँ पे क्या होता है देखो, कैरियर मीडिएटेड सिस्टम में क्या होता है कि एक प्रोटीन का कैरियर रहेगा, will be available on the plasma membrane that will combine with the molecules like drug molecule or your amino acid. ड्रग मॉलिक्यूल के साथ में भी कंबाइन होगा या फिर अमीनो एसिड या फिर जो भी है मोनोसेक्राइड्स वगैरह के साथ में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. वो प्रोटीन प्लस ये मॉलिक्यूल उसके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे. दैट कॉम्प्लेक्स इज अ रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और नॉन कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और वो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाएगा और बाद में वो कैरियर मॉलिक्यूल वहां जाके उसको डिसोसिएट कर देगा, वहां पे उसको रिलीज कर देगा और कैरियर मॉलिक्यूल वापस वहां पे उसकी जगह पे आ जाएगा. मतलब जो होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है और आपने इनवाइट किया है बहुत सारे लोगों को, तो लोग आ गए लेकिन उनको मालूम नहीं कि आपका घर कहाँ पे है. वो बस स्टैंड पे आ गए लेकिन आपको मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं घर कहाँ पे है. तो आप क्या करते हो, आपके घर के एक मेंबर को वहां पे बस स्टैंड पे तैनात कर देते हो कि जो भी यहाँ पे आएगा उसको उठा के घर पे लाके छोड़ने का और वापस वहां पे जाने का दूसरे मेंबर के लिए. तो दे आर वर्किंग लाइक इन अ सिमिलर पैशन. So carrier mediated transport means they are the carrier proteins. They used to form a complex with the interstitial molecule like monosaccharides, then drug molecule or amino acids. They will form a complex. The complex will be drug molecule complex, drug complex with carrier protein. The complex will be transported across the cell membrane and the complex will be dissociated in the across another part. वहाँ पे लेके जाएगा, वहाँ पे डिसोसिएट होगा और कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो वापस अपनी जगह पे आएगा. दैट इज नोन एज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. सो दे आर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन रहेगा. जैसे ग्लूकोज के लिए होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कैरियर प्रोटीन होता है GULT1, GULT2, GULT3, अपन ने देखा है. ओके, दोज आर द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. अमीनो एसिड के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा. सो अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ग्लूकोज के साथ में कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करेगा. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का जो कैरियर ट्रांसपोर्ट है वो अमीनो एसिड के साथ में कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करेगा. सो दे आर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, they are structure specific and the kinetics of this mechanism is described by mixed order kinetics or Michaelis-Menten equation, saturation और non-linear kinetics. यहाँ पे saturation होता है. ठीक है. एग्जाम्पल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन. मोस्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है the bioavailability of drugs are absorbed by such system decreases with increasing the dose. मतलब क्या होता है कि ये जो कैरियर प्रोटीन है दे आर सैचुरेबल बिकॉज नंबर ऑफ कैरियर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ कैरियर कितना होते हैं, लिमिटेड होते हैं. जैसे मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपके विटामिन का एब्सॉर्प्शन करने वाले जो कैरियर है वो मान लीजिए कि आपको इंस्टेंस 10 है, 10 कैरियर्स आपके. अगर आपके जीआईटी में आपका 10 मॉलिक्यूल्स है तो 10 carriers will form a complex and they will transport the vitamin molecule across the cell membrane. बट आपने डोज बढ़ा दिया विटामिन का, तो मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल की जगह पे 20 मॉलिक्यूल जीआईटी में है
और कैरियर प्रोटीन कितने हैं 10. So 10 carrier protein will combine with 10 vitamin molecule, but 10 molecule of vitamin will be extra. So the process is searchable, मतलब यहाँ पे limited carrier protein रहेंगे. Okay, process is searchable and it can be the kinetics of this process can be described by Michaelis Menten equation. बस इतना याद रखो कि कैरियर मटेरियल ट्रांसपोर्ट में माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का कुछ रिलेशन है. इतना भी याद रखा तो क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो जाएगा. Location of such carrier system is known as a absorption window. ये GPAT 2018 या 19 में कुछ क्वेश्चन आया था absorption window के बारे में. Location of such carrier system, आपका जो GIT का एरिया है, मान लीजिए आपका एक इंटेस्टाइन का एरिया है, तो पूरे इंटेस्टाइन में ये कैरियर प्रोटीन पूरे इंटेस्टाइन में नहीं रहेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया होगा कि जहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैरियर प्रोटीन अवेलेबल रहेंगे टू ट्रांसपोर्ट डरग मॉलिक्यूल अक्रॉस द GIT वॉल. आपके इंटेस्टाइन में एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा कि जहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैरियर प्रोटीन रहेंगे, bunch of carrier protein or a group of carrier protein will be available in a specific area of your intestine. Okay, and that area is known as absorption window. Remember, यहाँ पे जो मैंने बोला है absorption window जो है ये term, okay, a bunch or a group of carrier protein, that is they are a bunch or a collection or a colony of carrier protein available in the intestine for the absorption of drug and other molecules. Okay, so they are localized in a particular area. That area is known as absorption window. याद रखो. इसके ऊपर जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 18 और 19 में आया था. ओके, ये जो कैरियर प्रोटीन होते हैं इनका ग्रुप होता है एक पर्टिकुलर जगह पे इंटेस्टाइन में. ठीक है, वो जो जगह है उसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन विंडो. एंड बिकॉज क्यों बोलते हैं, बिकॉज this drug molecule or molecules of vitamin, they are absorbed through this absorption window only. That is known as the absorption window. A group of carrier protein available at a particular location in the GIT, that is known as the absorption window. इसके बाद का डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अभी तक आपको एनर्जी नहीं लग रहा था. नाउ अभी क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल रिक्वायर ATP. एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल रिक्वायर ATP and it is a energy dependent. Okay, तो उसमें भी different type होते हैं, primary active transport, secondary active transport. So first one is the primary active transport. So primary active transport में there is a direct involvement of ATP. One molecule or ion only in one direction will be transported. That is the example SimPorter. So here in active transport the movement of molecule is against the concentration gradient. मगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपके ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ग्लूकोज का, फिर भी यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिर भी एब्सॉर्ब होगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो मूवमेंट ऑफ ड्रग और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर ए एनर्जी. वहाँ पे एनर्जी लग जाएगा. ठीक है, तो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें डायरेक्ट ATP का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. So in case of primary active transport, direct ATP is required. So for example, one molecule or one ion is only transported in one direction. Such kind of transport is known as a uniporter. ठीक है, यूनिपोर्ट. देखो एक मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएगा, that is known as यूनिपोर्ट. Okay, so one molecule or ion will be transported in a one direction only. That is known as uniporter. Example, absorption of glucose. ये यूनिपोर्ट का एग्जांपल है, ये पिंक वाला. एक मॉलिक्यूल मतलब एक ही साइड बाहर से लेके अंदर जाएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, बाहर से लेके अंदर को ट्रांसफर करना इसका काम है. उसको बोलते हैं यूनिपोर्ट. यूनि मतलब एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल होता है. यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है यूनिपोर्ट का. मॉलिक्यूल लेगा अंदर छोड़ देगा, इधर से फिर से मॉलिक्यूल लेगा अंदर छोड़ देगा, एक ही डायरेक्शन में. दैट इज यूनिपोर्ट. ओके, सो आयन ट्रांसपोर्टर, दैट इज एग्जांपल इज ग्लूकोज का होता है यूनिपोर्ट. आयन ट्रांसपोर्टर्स, ATP ड्रिवन प्रोटॉन पंप इन द स्टमक. आपको जो स्टमक है, एसिड फॉर्मेशन जो आप पे होता है स्टमक में, वहां पे एक पंप होता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप. दैट इज आल्सो ए आयन ट्रांसपोर्टर. दैट इज एग्जांपल ऑफ आयन ट्रांसपोर्टर. नेक्स्ट वन इज ABC. ATP बाइंडिंग कैस्केड. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. ATP बाइंडिंग कैस्केड ट्रांसपोर्टर responsible for the transportation of foreign molecule or toxin. P glycoprotein is a classical example for
pumping the anti-cancer drug which are hydrophobic outside the cell known as a multi-drug resistance protein। इसमें क्या होता है कि देखो एंटी कैंसर ड्रग जो होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग का साइट ऑफ एक्शन होता है आपका सेल, ठीक है। साइट ऑफ एक्शन क्या है एंटी कैंसर ड्रग का? सेल। सेल के अंदर नहीं काम करना है, सेल को डिस्ट्रक्ट करना है, इसलिए सेल के अंदर जाके वो उनका काम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम आपका जो सेल है वो सेल क्या करता है, सेल विल डेवलप मैकेनिज्म टू एक्सपेल दैट ड्रग। सेल बोलेगा इसका अंदर आने नहीं देना, अगर आगे आ भी गया अंदर तो इसको बाहर फेंक देना है क्योंकि अपने को मार देता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जैसे आपका साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन का मॉलिक्यूल सेल के अंदर गया जाएगा उसके मैकेनिज्म से, लेकिन सेल को डिस्टर्ब कर देगा, तो आपके सेल जेनेटिक मेकअप में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और डेवलप कर देते हैं to expel that drug. Okay, so peak glycoprotein is a classical example responsible for the pumping of the anti-cancer drug, which are hydrophobic outside the cell, known as a multi-drug resistance protein. अगर ये प्रोटीन डेवलप हो गया तो आपका एब्सॉर्प्शन नहीं होगा ड्रग का। इस known as ABC, ATP binding cascade transporter. So for a multi-drug resistance, ATP binding cascade transporters are responsible. For a drug resistance, multi-drug resistance for the absorption, ATP binding cascade transporters are responsible। ऐसा क्वेश्चन था। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हो गया प्राइमरी एक्टिव। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी लगता है कोई एटीपी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नहीं लगता, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट मींस व्हाट, मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन द सेम डायरेक्शन, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरियस काइंड ऑफ ये होते हैं उसकी जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिम्पोर्ट होता है, यूनिपोर्ट होता है, एंटीपोर्ट होता है। ऐसा यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ग्रीन वाला, सो ग्रीन वाला जो है सिम्पोर्ट है, मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। यहाँ पे देखो आपका ये दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल है आपका सोडियम का, ये दोनों मॉलिक्यूल को साथ में लेके अंदर छोड़ देगा, उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। Two molecules in a one direction, that is import. Now next one is antiport or counter transport, involves the movement of molecule in a opposite direction, sodium hydrogen exchange pump in the kidney for example। अभी ये देखो यहाँ पे एंटीपोर्ट जो है येलो कलर वाला, तो ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल को अंदर लेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ देगा, मॉलिक्यूल को अंदर लेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ देगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल को अंदर लेगा, ये मान लीजिए ये मॉलिक्यूल को अंदर लिया, ये मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ देगा। सो काउंटर ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप इन द किडनी। तो ऐसा एक सिस्टम रहेगा किडनी में, इज एंटीपोर्ट। सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेन लास्ट होता है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो वेसिकुलर मतलब सेल, वेसिकल मतलब क्या, सेल। जो वेसिकल होता है उसको बोलते हैं सेल, सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ओके, हर एक सेल आपको कैसे करेगा, मतलब जैसे आपका डब्ल्यूबीसी है, फैगोसाइट करेगा, पिनोसाइट करेगा, वैसे। सो फर्स्ट वन इज अ पिनोसाइट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट वन इज अ पिनोसाइट। सो पिनोसाइटोसिस मींस सेल ड्रिंकिंग, सेल क्या करेगा, ड्रिंक कर लेगा उसको। मान लीजिए ये जो सेल है आपका, ये सेल है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स है लिक्विड में, तो वो सेल क्या करेगा, ड्रिंक कर लेगा उसको, जैसे इस तरीके से। So that is known as a pinocytosis. Cell drinking is known as a pinocytosis. And phagocytosis means cell eating. जैसे ये होगा, ये बड़ा मॉलिक्यूल है आपका, है ना, ये वाटर soluble small molecule, they are pinocytosized, pinocytosized। मतलब पिनोसाइटोसिस से कौन जाएगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल वेट है वाटर soluble है, वो पिनोसाइटोसिस हो जाएगा उसका। फैगोसाइटोसिस किसका होगा, लार्ज मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये येलो वाला जो मॉलिक्यूल है, येलो वाला मॉलिक्यूल मान लीजिए कि ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल है समझा, मान लीजिए एग्जांपल इज बैक्टीरियल सेल। सो बैक्टीरियल सेल विल बी फैगोसाइटोसाइज्ड बाय डब्ल्यूबीसीज, है ना, न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करेंगे आपका बैक्टीरियल सेल का। सो ये एनग्लम म्हणजे सेल ईटिंग, फैगोसाइटोसिस इज नथिंग बट द सेल ईटिंग और अपटेक ऑफ सॉलिड और एनग्लमिंग ऑफ सॉलिड और पार्टिकल और सेल बाय our body cell, that is known as a phagocytosis। हो गया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, एक सेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब सेल कैसे ये करेंगे, ड्रिंक करेंगे या फिर ईट करेंगे, सो दैट इज अ फैगोसाइटोसिस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है,
What do you mean by cell eating phenomenon is known as a phagocytosis. Cell drinking phenomena is known as a pinocytosis. And both are the transport mechanism of वेसिकल और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सेल का ट्रांसपोर्ट है। अगेन यहाँ पे मैं समराइज करूंगा आपको। डिफ्यूजन मीन्स पैसिव डिफ्यूजन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा है वहां से कम चार्ज वाले एरिया में जाने वाले उसको बोलेंगे पैसिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब क्या, यहाँ पे कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन रहेगा वो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, दोनों में भी एनर्जी नहीं लगता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन ही रहेगा लेकिन उसमें एनर्जी लगेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है फिर भी मॉलिक्यूल यहाँ से लेके यहाँ पे लाके छोड़ देगा, मीन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इट इज नोन एज अप हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई हिल है, नॉर्मल रोड है, यहाँ पे कोई चढ़ा नहीं मतलब स्लोप है, तो आपको नॉर्मल नॉर्मल को कुछ लेके जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा या फिर अप हिल, तो अप हिल के लिए। सो दैट्स व्हाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अप हिल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सो दैट्स व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो अगेन आप इस देखो पोर ट्रांसपोर्ट। सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा आपका पैसिव डिफ्यूजन से। सोडियम का ट्रांसपोर्ट होगा एक्वियस चैनल, पोर ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं अपन, पोर ट्रांसपोर्ट, ये एक्वियस चैनल्स होंगे। सोडियम का एब्सॉर्प्शन होगा पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन होगा वो लेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये तीनों में भी आपका एनर्जी नहीं लगेगा। सो सिंपल डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं लगता, देन एक्वियस पोर्स ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी नहीं लगता, देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं लगेगा। लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम को बाहर निकलेगा, पोटेशियम को अंदर लेगा, वो दैट इज एनर्जी डिपेंडेंट। ये ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी। अगेन समरी है सब। दिस वाज अगेन फॉर द एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, नाउ दिस एब्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है आपका एब्सॉर्प्शन प्रोसेस, it is a common in pharmacology as well as medicinal chemistry as well as biopharmaceutics। एब्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो कॉमन है, आपका फार्माकोलॉजी में भी है, आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी है, आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में, आपका बायोफार्मास्यूटिक्स में भी। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक सेपरेटली, आई हैव ऑलरेडी समराइज्ड ऑल द पॉइंट्स इन अ कंबाइंड मैनर। सब में का पॉइंट कंबाइंड मैनर में आपको यहाँ पे समराइज किया है मैंने। तो एब्सॉर्प्शन सबके लिए सेम है, बायोफार्मास्यूटिक्स में भी एब्सॉर्प्शन वही है, आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी वही है, आपका आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री में से भी वही आएगा आपका, और आपका यहाँ पे फार्माकोलॉजी में भी सेम है। सो कंटेक्स्ट मींस एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। So out of that we have seen the absorption process. In the afternoon session we will see distribution and metabolism. Okay.